So yeah, hello everyone. Uh, Today is the workshop on introduction to Internet of Things. So first of all, uh, let me introduce myself. My name is Aman Kumar Devangan. I am currently pursuing my BTech in Electrical Engineering from National Institute of Technology, Raipur, fourth year, and I am going to be part of G Healthcare as an addition engineering development program trainee, and also I have been an alumni at Wolfram Summer School in 2021 as a research student. Also, in addition to that, I am also the founder of Hack Club NIT Raipur, and it's our first mega event that we are organizing, that is Trek the Hill. Though it's online, but we have been receiving a lot of great response from people all over the country. People have been joining us from SRM, NIT Tiruchirappalli, NIT Patna, and various other institutes as well. So it's great to see that we have such a great audience from throughout the whole country. Particularly, this is my first workshop on this particular topic, to be honest. And I mean, I do have some decent experience, and I will try to share it in my best way. So let's hope this goes well for everyone then. Yeah. So let's begin. So talking about IoT, IoT से बारे में बात करने से पहले ये जानते हैं कि IoT करता क्या, ठीक है? Like what IoT does. So whenever you want to understand something in layman terms, what you look for is you look for something in your surrounding you can relate to. एक कुछ ऐसा ढूंढते हो तुम अपने सराउंडिंग में जिससे तुम अपने आप को उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ इसमें IoT का इम्प्लीमेंटेशन है करके. ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग IoT के बारे में डिस्कस करते हैं, देन हमें हमारे सबसे पहली चीज जो याद आनी चाहिए वो है हमारे सेल फोन्स. हमारे सेल फोन्स में जो जीपीएस फीचर होते हैं, ठीक है, जीपीएस फीचर में क्या होता है, अब वो IoT क्यों है पहले वो बाद में बात करेंगे, बट एक सेल फोन हो गया. सेल फोन में जो जीपीएस होता है वो एक तरीके से IoT हो गया. तो हमारा टीवी रिमोट हो गया जिससे तुम टीवी को कंट्रोल करते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ IoT. देन वायरलेस ईयरफोन्स और दी हेडफोन्स दिस आई एम वेयरिंग, ठीक है, ये वायरलेस स्पीकर्स हो गए, वो भी IoT के एग्जाम्पल हो गए. द स्मार्ट वॉच यू वेयर ऑब्वियसली. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स कॉमन इन ऑल ऑफ देम? There's something common in each of them. Can someone tell me what is common? Wire is absent, Just write down in chat. So I mean, I wanted to see all the responses. Okay. Okay. Controlling remotely is one right answer. Wireless connection, same one. Raj actually pointed out the mean stuff. All hardware is connected to a software via wireless connection. That is the common thing. Okay, batteries, I don't think so. I mean, it can be a power source as well. So these are all digital. I mean, yeah, it's kind of digital, but yeah, I mean, it's like without hardware and software coming up together, you can't imagine IoT. IoT is hardware with software. Without hardware, you can't expect IoT. So hardware exists somewhere around there only. Processor. I mean, have you ever opened I don't know, but in my time when I had in my home earlier when I used to have this TV, we don't have any controller processor within that particular remote. It was just like an antenna with some random lines drawn on the PCB. So processor is, I don't think so, a necessary part, but yeah, we can consider it. So yeah, the basic common thing which I got correct from here is wireless connections, interaction between hardware and software. Got it? So what we will learn today, we will learn about what is IoT. We will get to know how it works. What are the basic requirements that you need to get started with IoT, and what all electronics stuff and all you need to go. Then we have hardware programming. I mean,
see, as earlier I said, when it comes to IoT, what happens in general is that there is hardware and then there is software, and then when you link both the things, then it becomes IoT. So basically, electronics and hardware programming is something that is the base of the you can say IoT. Then we would be also discussing about Arduino, ESP32, ESP8266, a bit of like slightly upper, not in deeper sense. Then we would also be discussing about what is Raspberry Pi, what's the difference between an Arduino and Raspberry Pi, what is basically the role of database over here, what are communication protocols and what role they play in this particular IoT thing. I will also showcase some of my personal projects that I have made using IoT, from where you can buy hardware stuff for making or working on this hardware projects, and then sources from where you can learn IoT. So moving, what is IoT? I asked the question over there because I wanted to know how properly you can recognize what IoT is. So the basic definition of IoT, what it says is, IoT stands for Internet of Things, and it is just a connection of electronic devices with a software through which we can transmit data from one end to the other end. Both the ends can either, one end is for sure be a computer and the other end be a user. But it's not necessary that one side it needs to be a computer only. Maybe it can be a user to user communication through hardware. That is also IoT. It can be a computer to human communication. That is also IoT. So it's like kind of various combinations that you can create over here. Even a computer to a hardware to hardware communication is also considered an example of IoT. So there's no specification of who is actually operating on both the ends of IoT. IoT exists as far as two people are communicating with each other via hardware through a wireless communication mode. So that is IoT. Is everything clear till now? If anyone has any confusion, just make it clear. You can feel free to interrupt me if you have any doubt. Okay, looks good then. So how IoT works? Okay, so now I'm going to tell you what is the basic infrastructure of how actually our IoT system works. Let's assume that this is your smartwatch. Let's say this is an Apple Watch, and this is let's say receiver is let's say you're a doctor. Let's say you are a patient of some heart disease. So your Apple Watch measures your pulse rate. I'm like taking it a hypothetical situation. Let's not get into like what actually reality is, but I'm taking a hypothetical situation. So this is your sender is a smartwatch. What it does is it has a sensor called, let's say, pulse meter attached to it. It measures the pulse rate from your body. It wraps it within a message. Like when you write someone a letter or a postcard, you fold it within some kind of like you can say what we call in Hindi called lifafa. So it like turns it down into packets, and then it sends that packet into the database. अब जब वो packet database पहुंच गया, means the packet has reached the database. Now what the doctor's website will do is, in order to make the doctor see the data that it has received in real time, the receiving website will actually request from the database. वो रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस से कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प, यानी मान के चलो उसने लास्ट डेटा 12 बजे भेजा, तो तुमने जो भी लास्ट डेटा मिला है वो मेरे को फेच करके दो. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मान के चलते तुम्हारा सेंडर खाना बनाने वाला है, खाना बनाने वाले ने खाना वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली तुम्हारे कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया. ठीक है, कन्वेयर बेल्ट से तुम्हारे पास होके तुम्हारे उसके पास पहुंच गया. किसके पास? वेटर के पास. अब वेटर वेट कर रहा है क्या बोलते हैं तुम्हारे इससे ऑर्डर करने वाले जो भी कस्टमर है उससे वेट करेगा कि कस्टमर बोले वेटर को कि यू कैन ब्रिंग द फूड.
ठीक है, ये ना थोड़ा सा उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर कॉम्प्लिकेट लगता है मेरे को बोल देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। ओके, हिंदी में समझा था, ओके। सबसे पहले सेंडर, ठीक है, तुम्हारे पास एक एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच ने तुम्हारा पल्स रेट भेजा डेटाबेस में। डेटाबेस कहाँ है? क्लाउड है, मान के चलो वो एक इमेजिनरी लोकेशन है जहां पे सब कुछ जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे ब्रेन में जाके सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, तुम्हारे एप्पल वॉच ने उस पल्स रेट को एक पैकेट फॉर्म में पैक किया, पैक करके उसने डेटाबेस में भेज दिया। अब तुम्हारे डॉक्टर ने उस पैकेट को रिक्वेस्ट किया डेटाबेस से, उसने यहां पर से तुम्हारा डेटा लिया, तुम्हारे डेटा को उसने देखा, प्रोसेस किया, कि उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। लेट से तुम्हारा बीपी बहुत लो आ रहा है या पल्स बहुत लो आ रहा है, यानी तुम कभी भी बेहोश हो सकते हो, तो उसने एक कंक्लूजन निकाला तुम कभी भी बेहोश हो सकते हो। अब होगा क्या, अब उसने एक फीडबैक दिया, फीडबैक उसने क्या दिया, उसने एक अलर्ट निकाला। अलर्ट क्या निकालेगा वो, कि वो तुम्हारे किसी रिलेटिव को या फिर तुम्हें नोटिफाई कर देगा कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है या तुम्हें कुछ रेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ रेस्पॉन्स टू व्हाट इट गॉट फ्रॉम यू, ठीक है। तो जो भी सेंडर मिला उसका बेसिकली उसने एक रेस्पॉन्स जनरेट किया, वापस से उसको उसने डेटाबेस में भेजा। दिस डेटाबेस इज एक्चुअली लाइक अ कॉमन लिंक बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर। अगर डेटाबेस नहीं होगा देन neither the sender can communicate to the receiver nor the receiver can communicate to the sender। तो क्या किया, डॉक्टर ने फीडबैक भेजा वापस डेटाबेस से। अब सेंडर ने, यानी जो तुम्हारे एप्पल वॉच या तुम्हारे फोन है, उसने एक अलर्ट रिसीव किया डेटाबेस से कि हाँ भाई तुम्हारा बीपी लो हो गया या तुम बेहोश होने वाले हो या फेंट होने वाले हो, तो नाउ दैट यू नीड टू टेक सम फूड इनपुट, कि ताकि तुम हेल्दी रह सको। तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे हुआ क्या आर्किटेक्चर में, अभी तक से किसी को कंफ्यूजन, एनी डाउट, चैट में लिख सकते हो। गॉट इट, फाइन। अच्छा, तो मुझे एक चीज बता, अगर मैं तुम लोगों को इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए। ये तो मैंने थोड़ा सा नहीं आया, ओके ठीक है अनमोल, ओके, तुमको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाते हैं। हम्म, अच्छा अनमोल, थोड़ा सा एक्टिव रहना भी। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी उबर बुक किया है? हैव यू एवर बुक्ड अ उबर, और लाइक ओला रैपिडो कुछ भी बुक किया हो? ओके, ओके ठीक है, ओला बुक किया है ना, ठीक है। मान के चल सेंडर तेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। सो व्हाट मोबाइल फोन इज डूइंग हियर इज इट्स शेयरिंग योर जीपीएस लोकेशन। तो ये जो सेंसर डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पैक होके जाएगा डेटाबेस में, ये तेरा करंट लोकेशन होगा जहां पे तेरे को टैक्सी चाहिए। ये कहाँ गया, ये ओला के डेटाबेस में गया कि तेरे को इस एरिया में वो चाहिए। उसके वेबसाइट या ऐप ने रिसीव किया कि भाई तेरे को, तो किसी कस्टमर ने, इस नाम के बंदे ने ये वाला यहाँ पे कैब रिक्वेस्ट किया, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके ठीक है, अब उसने रिक्वेस्ट रिसीव किया, अब वो क्या करेगा, उसने प्रोसेस किया तेरा डेटा। कैसे प्रोसेस किया, अब जहां पे तेरी करंट लोकेशन है उसने उस डेटा को प्रोसेस किया, और तेरे आसपास जो नियरेस्ट ओला ड्राइवर है उसको ढूंढने के लिए उसने प्रोसेस किया। तो बेसिकली वो प्रोसेस हुआ ना, तो जैसे उसने प्रोसेस किया वो डेटा, उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई एक रामू नाम का कोई ड्राइवर है, लेट्स से ड्राइवर विद द नेम ऑफ रामू इज आइडेंटिफाइड नियर यू। अब वो फीडबैक दिया, प्रोसेस डेटा को रिसीवर ने रिसीव किया कि भाई एक रामू नाम का ड्राइवर है इसके पास है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो तेरे को उसका लोकेशन भेजेगा, ठीक है। डेटाबेस में पहले वो रामू की लोकेशन और तेरी लोकेशन डालेगा, ठीक है, दोनों की लोकेशन, क्योंकि जरूरी है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को चाहिए तेरा लोकेशन और तेरे को चाहिए ड्राइवर का लोकेशन बेसिकली। तो उसने दोनों का डेटा डेटाबेस में डाला वापस से। अब क्या करेगा, वो डेटाबेस से तेरा ऐप डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा कि तेरे ड्राइवर की करंट लोकेशन क्या है और उसको कितना देर लगेगा तेरे तक आने में। और ड्राइवर
ड्राइवर को ये डेटा जाएगा कि तू उससे कितना दूर है और तेरे ड्राइवर को तेरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझा? वो फीडबैक डेटा हुआ। अंडरस्टूड? फाइन। अगर किसी और को डाउट है तो कोई भी पूछ लो, क्योंकि 90 लोग हो भाई, ऐसा हो नहीं सकता किसी को समझ में, यानी कोई तो होगा, एक बेवकूफ होता है। अगर बेवकूफ बनने रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार बेवकूफ कहलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर बेवकूफ नहीं कहलाना पड़ेगा फिर। मुझे कुछ ही लोग एक्टिव लोग दिख रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो। मैं उसीलिए कितना इंटरेक्टिव हो कि भाई हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में चिल होके पूरा समझा रहा हूँ। ओके फाइन देन। सो व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट स्टार्टेड? ठीक है, अभी तक से तुम लोगों को आईओटी समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, डेटाबेस लगता है, क्या क्या होती है चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारे आईओटी में इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे तुम कितना ही बड़ा ऐप बनाना सीख जाओ, चाहे तुम कितना ही बड़ा वेबसाइट बना लो, चाहे तुम ब्लॉकचेन सीख लो, चाहे तुम एआईएमएल सीख लो, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, यू कैन नेवर डू आईओटी। आईओटी का कोर बेसिक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग दैट लाइज इन द कोर ऑफ द आईओटी। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मैं वो स्मार्ट वॉच हटा दूं, ठीक है, या फिर तुम्हारा मोबाइल फोन हटा दूं, क्या तुम अपना लोकेशन उस ओला वालों को वायरलेसली भेज पाओगे? अगर मैं तुम्हारा मोबाइल फोन ही हटा दूं तो नहीं ना। सिमिलरली अगर मैं ड्राइवर से उसका यानी वो ऐप ही हटा दूं और सिर्फ हार्डवेयर रख दूं, वुड दैट मेक सेंस? नो। तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी पता चला कि इंटर रिलेटेड है, बट हार्डवेयर के बिना आईओटी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इन इंडस्ट्रीज जहां पे तुम देखते हो, जैसे कहीं कहीं पे तुम लोगों ने सुना होगा जैसे ऑटोमेटेड रोबोट आर्म्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली तुम्हारे कार कंपनीज वगैरह में यूज होते हैं, बेसिकली फॉर ड्रिलिंग पर्पसेस एंड तुम्हारे नेल्स वगैरह लगाने के लिए, कार बॉडी पार्ट से उनको असेंबल करने के लिए। वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होता है। वहां तो मेजर ही इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर का होता है। अगर तुम लोग सोचते हो कभी भी किसी इंडस्ट्री रोबोट के बारे में, उसकी मेजर कॉस्ट उसकी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पे नहीं आती है, उसकी हार्डवेयर डिजाइनिंग पे आती है, क्योंकि हार्डवेयर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग जहां पे सबसे ज्यादा फिजिकल इन्वेस्टमेंट लगता है। सॉफ्टवेयर में बिल्कुल ही कम फिजिकल इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, काफी लोगों को नहीं समझ में आया। एक सेकेंड, ये नहीं किस लिए था मेरे को एक बार क्लियर करोगे कोई? अगर कोई अनम्यूट करके बोल सकते हो तो। ये नहीं था किस लिए, नो नो वाला? Electronic. Sir, it was for that without hardware IoT can't work. अच्छा अच्छा, ऑब्वियसली मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर कर दिया। एंड देन तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जब तक एक चीज बताओ, अगर अबैकस को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, अबैकस जानते हो क्या होता है? कितने लोग जानते हो अबैकस क्या होता है यहाँ पे? अबैकस पता है ना? आधे लोगों को, मेरे को पता है, जिन लोगों को याद नहीं होगा अबैकस क्या होता है। याद है ना? चलो ठीक है, मेजॉरिटी को मालूम है, चलो एटलीस्ट तसल्ली है कि अबैकस नाम याद है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अबैकस को अगर मैं लेट्स से तुम लोगों ने मोबाइल फोन में भी अबैकस यूज किया होगा, ऐसे जनरल एक वुडन वाला, जब मैं छोटा था तो मेरे को याद है कि ऐसे वुडन वाला आता था हम लोगों के पास अबैकस, वो वाला यूज करता था। अगर मैं उस अबैकस को प्रोग्राम कर दूं तो वो एक आईओटी डिवाइस तो नहीं कहलाएगा, बट इट्स अ ऑटोमेटेड डिवाइस। ठीक है, जो तुमको काउंट बताते रहेगा ऑटोमेटिकली। अब लेट्स से थोड़ा सा उसको इंटर रिलेट करते हैं। एक रोबोट है, ठीक है, उसकी सिर्फ बॉडी है, बट उसके अंदर कोई एआई नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो एक डम्ब है। ठीक है, वो क्या काम करेगा? उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके अंदर अंदर ना कोई कोड है ना कमांड है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे ही तुम उस हार्डवेयर को प्रोग्राम करोगे, देन इट विल बी एबल टू लॉजिकली प्रोसेस थिंग्स। ठीक है, तो सिमिलरली इन आईओटी एंड रोबोटिक्स ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है
कि इफ यू वांट टू मेक योर हार्डवेयर वर्क यू नीड टू प्रोग्राम इट। तो प्रोग्रामिंग जो है वो उसका बहुत क्रूशियल पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू लाइक व्हाट आर्डिनो इज। आर्डिनो पे डायरेक्ट जंप नहीं करते, पहले ये बताओ यहाँ पे कितनों को पता है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? पहले तो यस लिख दो अगर जितनों को पता है तो। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर होता है। आई मीन माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर होता है, बट डिफरेंस क्या है? इस एक को माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, एक को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, अलग क्यों? दोनों तो सेम है। नहीं मालूम है प्रोसेसर। ओके कंट्रोलर, ओके। आई मीन दिस इज समथिंग बेसिक आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्डिनो और रास्पबेरी पाई का नाम कितने लोग सुने? पहले ये बताओ। आर्डिनो तो सुने होगे, आर्डिनो कितने लोग सुने ये भी बता दो एक बार। हैंड रेज वाला एक ऑप्शन होता है वो भी कर सकते हो, या फिर ओके आर्डिनो का भी नहीं पता आर्डिनो क्या होता है। नहीं, काफी नूब ऑडियंस है, चलो कोई बात। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, नेटवर्क इशू हो गया था। स्क्रीन विजिबल है सबको वापस से? स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, तो देखो बेसिकली एक सेकेंड मैं चैट खोल लेता हूँ। हाँ, तो बेसिकली जो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें एक सीपीयू होता है, ठीक है। जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसमें भी एक सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास भी एक सीपीयू होता है। बट माइक्रो कंट्रोलर कोई सीपीयू नहीं होता, उसमें सिर्फ एक इतनी सी छोटी सी चिप होती है जो बेसिकली प्रोग्राम होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये दिख रहा है आर्डिनो बोर्ड, आई गेस यू गाइस कैन सी, दिख रहा है ना? एक सेकेंड रुक जा, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे रुक जाना एक सेकेंड, सॉरी, ये ब्लैक वाली चिप दिख रही है यहाँ पे जिसमें मेरी उंगली है, एक सेकेंड। हाँ, ये ब्लैक वाली दिख रही है यहाँ पे जिसमें मेरा ये टिप वाला फिंगर है, दिख रहा है? ये जो है ये माइक्रो कंट्रोलर है, मेन माइक्रो कंट्रोलर। ये बोर्ड भी नहीं है, ये है मेन माइक्रो कंट्रोलर जो उसमें चिप लगा हुआ है। एटमेगा 328p बोलते हैं यस उसको, हाँ एटमेगा 328p, ठीक है। तो दैट इज द मेन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के पास कभी भी खुद का कोई सीपीयू नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर्स में रैम तो होता है, बट उस रैम की कैपेसिटी केबीज में होती है, ठीक है। जबकि तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर्स में जो रैम की कैपेसिटी होती है वो अराउंड रास्पबेरी पाई की बात करो तो 2 GB से 8 GB के बीच वैरी करती है। जस्ट लेट मी मेक यू सी, ये रास्पबेरी पाई है। रास्पबेरी पाई दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? यस सर। सर फिल्टर उतना ठीक से नहीं दिख। द प्रॉब्लम इज, देखो कि यहाँ पे तुम लोगों को प्रोसेसर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे प्रोसेसर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सपेंशन बोर्ड लगा हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा कि प्रोसेसर एक्चुअल में इसका दिखता कैसा है, ठीक है। बट इसके नीचे वाले लेयर पे एक्चुअली में यहाँ पे जो गैप है, यहाँ वाले लेयर पे उसका प्रोसेसर लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट उसका मेन जो सीपीयू है वो उसके नीचे वाले लेयर पे है। तो बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू होता है और एक माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू नहीं होता। द अदर डिफरेंस जो होता है कि जो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिजिटल पे ऑपरेट करता है, जबकि तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग एंड डिजिटल दोनों पे ऑपरेट करता है। एनालॉग एंड डिजिटल का कॉन्सेप्ट मालूम है तुम लोगों को, या वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? मालूम है ना? अच्छा, तो देखो डिजिटल सिग्नल्स, देखो डिजिटल सिग्नल्स को अगर डिफाइन करना हो ऑन अगर ग्राफ बेसिस पे बोलूं तो दे आर लाइक स्क्वायर वेव्स, या तो उनकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। बेसिकली लाइक अ बाइनरी डेटा इज एग्जांपल ऑफ
डिजिटल सिग्नल 011010 ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। जबकि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। लाइक मैं तुम लोगों को, रुको, स्क्रीन शेयर मेरा ऑन है ना पूरा, ओपन बोर्ड मिल जाए एक बार, बोर्ड, पेंट नहीं करके दिखा देता हूं। जस्ट सेकेंड, रुकना ना। दिख रही है स्क्रीन ना पेंट? हेलो? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा ड्राइंग गंदा Yes, बन रहा है, sir. मान रहा हूँ। ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ मैं, पेंट में पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला हो गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझ जाना, ठीक है। बहुत गंदी ड्राइंग बनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये 0 हो गया तुम्हारा और ये 1 हो गया। इससे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर के ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा ये वाला एक्सिस टाइम एक्सिस है, ये वाले एक्सिस को अगर मैं टाइम एक्सिस मानूं, तो तुम्हारे डिजिटल सिग्नल्स की एट एनी इंस्टेंट वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ठीक है। जबकि तुम्हारा एनालॉग में क्या होता है, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट उसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, यानी एक इंस्टेंटेनियस होता है। जबकि जो तुम्हारा डिजिटल सिग्नल होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता, ठीक है। इतना तो समझ गया होना ना बेसिक अभी तक से। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो बता देना, मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक घर भेज दूंगा, ठीक है। देखो, तो अगर वही है एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे तो बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू व्हाइल अ डिजिटल सिग्नल इज नॉट डिफाइंड। अब तुम लोगों को लगता होगा कि ये इंस्टेंटेनियस कैसे है, यानी तुम लोगों को ये डाउट आया होगा ना एक सेकंड के लिए कि भाई अगर यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए ये यहाँ पे 0, यहाँ पे ये एट सेम टाइम मान के चलते 1 दिखा रहे हो, फिर यहीं पे 0 दिखा रहे हैं, बट वो बोलने के लिए वैसा बोला जाता है, बट वो एक्चुअली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं होता। एक्चुअल में उसका वेव फॉर्म मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। अगर उसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जे लेके जाओगे ना कंप्यूटर के, तो वो कुछ ऐसा बनता है, हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। बेसिकली इट्स लाइक अ पैरेललोग्राम टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये हल्का सा जो तुमको दिख रहा है ना, ये एकदम माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है, ये छोटा सा गैप, ये वाला गैप, ये लिटरली माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स का गैप होता है। तो इसीलिए इसको इग्नोर करके ऐसे मान लेते कि एक स्क्वायर वेव है करके, ठीक है। इतना समझ गए? हाँ एग्जैक्टली, बहुत फास्ट चेंज होता है, बट इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ पैरेललोग्राम, एग्जैक्टली। तो वही है। तो बेसिकली इतना तो समझ गया ना माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस। अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, अगर तुम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक और बेसिक डिफरेंस बताना हो, क्या बता सकते हो तुम लोग? सोचो, तुम लोग खुद से बताओ। इमेजिन करो एक माइक्रो कंट्रोलर एक माइक्रो प्रोसेसर है, जब तुम उसकी रैम कैपेसिटी का डिफरेंस बता दिया तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उसकी? और माइक्रो Computational प्रोसेसर power. हैज इट्स ओन माइंड, मेमोरी, ऑब्वियसली मेमोरी इज राइट, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है मेमोरी की। एनीथिंग एल्स? माइक्रोप्रोसेसर, ऑब्वियसली माइक्रोप्रोसेसर इज मोर पावरफुल। एक में सीपीयू होता है एक में नहीं, वो मैं बता चुका हूं, समथिंग दैट आई हैवंट टोल्ड। एक सेकेंड यार, ये क्यों कर रहे हो? एनोटेशन नहीं करो ना।
processing capacity, speed difference. Okay, good. I mean, these all are basic, but something different I'm looking for. Okay, ठीक है. एक सेकंड में वीडियो ऑफ हो गया लग रहा है. हाँ, am I visible? हाँ. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, हाँ, जो बेसिक डिफरेंस होता है एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में, तुम लोग इतना क्यों नहीं सोचे कि तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर ही होता है एक तरीके से. तुम्हारा लैपटॉप भी एक माइक्रो प्रोसेसर ही है. उसमें क्या लगाना पड़ता है? एक सिंपल डेस्कटॉप भी एक माइक्रो प्रोसेसर ही होता है. उसमें तुमको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, जबकि एक माइक्रो कंट्रोलर में तुम्हें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नहीं लगाने पड़ते. दैट्स अ मेजर डिफरेंस. एक माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, वेयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर डजंट. तुम्हारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत महंगा होता है. माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, सिंपल अगर एक 2 GB का रास्पबेरी पाई भी आज के डेट पे मार्केट में लेने जाओगे ना, 4000 रुपए पड़ेगा ऑफलाइन में लोगे तो. और एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो लेने जाओगे ना, कितना पड़ेगा तुमको? ज्यादा से ज्यादा 500 पड़ेगा, 500 से 600. तो रेट डिफरेंस समझ रहे हो? तुम लोग अगर यहाँ पे अगर कोई कंप्यूटर पढ़े हो, उसको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए. जैसे तुम अपनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाओगे, जैसे तुम अपने स्टोरेज बढ़ाओगे, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा. यू आर पेइंग फॉर व्हाट यू गेट. हार्डवेयर ऐसे ही काम करता है, ठीक है. सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. ऑल्सो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पावर सेविंग नहीं होता, जबकि तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर बहुत ज्यादा पावर सेविंग होता है. मैं बता रहा हूँ, लाइक दे आर हाईली टॉलरेबल. माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत ज्यादा टॉलरेबल होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं होते, ठीक है. बिकॉज दे परफॉर्म बेटर, दे ऑल्सो नीड मोर एनर्जी टू लाइक वर्क आउट. इट्स लाइक अगर तुम 125 किलो का डंबल उठाने की कोशिश करोगे, तुमको पावर भी उतनी लगानी पड़ेगी. तुम 50 किलो का डंबल उठाओगे, तुमको कम पावर लगेगी 125 वाले से. तो बेसिकली वही बात है, ठीक है. अभी तक से सब क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं हो रहे हो ना कोई? नो सर. No, sir. No, sir. ठीक है. तो चलो अब भाई बात करते हैं आर्डिनो के बारे में. आर्डिनो बेसिकली एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इट्स यू कैन से इट अ माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो, ठीक है. ये एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है जिसको तुम प्रोग्राम कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ यानी सिंपल एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे सेंसर्स से डेटा रीड करना, ठीक है, किसी मोटर को रोटेट करना, ठीक है. ऑल दिस स्टफ यू कैन डू यूजिंग दिस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है. अब आर्डिनो कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया है. बेसिकली इट्स रिटन इन C++. अगर यानी उसकी कोर प्रोग्रामिंग में जाओगे, कोर प्रोग्रामिंग यानी उस जो उसका आईसी होता है ना, आईसी समझते हो क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म कोई बता सकते हो मेरे को? आईसी का फुल फॉर्म, चलो ये क्विज है, आईसी का फुल फॉर्म बताओ बिना Integrated circuit. हाँ, ठीक है. तो आईसी जो होता है वो प्रोग्राम होता है. कभी भी पीसीबी प्रोग्राम नहीं होता, आईसी प्रोग्राम होता है. ये हमेशा याद रखना. कोई भी बोलेगा कि आर्डिनो प्रोग्राम होता है, तो आर्डिनो का बोर्ड प्रोग्राम नहीं होता, आर्डिनो की आईसी प्रोग्राम होती है. आर्डिनो की आईसी कौन सी होती है? एटमेगा 328P. ये आर्डिनो ऊनो की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ना. मेगा का अलग होता है, नैनो का अलग होता है, ESP8266 का अलग होता है. तो हर उसके हिसाब से अलग अलग होता है. अब ये बताओ, कभी अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं, एक आईसी की प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में या C++ में क्यों होती है? कोई मेरे को रीजन में बताओगे? पाइथन में क्यों नहीं होती? जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं होती? C++ अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है हाँ, एज कम्पेयर वो टू है. पाइथन. फास्ट रहती है की वजह से बेसिकली जो तुम्हारा C++ जब उसमें कन्वर्ट होता है ना, यानी अगर तुम लोग पढ़े होगे, तुम आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं, बट जब उसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है या फिर मशीन लेवल कोड बनता है, ठीक है, वो बहुत, हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज. बहुत सही लिखा है विवेक ने. C and C++ आर हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज. दे आर लाइक मैं सही बता रहा हूँ, C++ में तुम 1000 लाइन का कोड लिखो, उसकी साइज 1 KB होगी.
मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। चाहे कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, उसकी साइज 1 KB होती है। लाइक 10,000 लाइन पे भी जाने के बाद ना कुछ कुछ प्रोग्राम्स की साइज लिटरली 5 KB तक जाती है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना इफेक्टिव होता है सी प्लस प्लस एज ए लैंग्वेज। तो मेरा कहने का मतलब यही था, आर्डिनो का जो आईसी प्रोग्राम होता है वो सी या सी प्लस प्लस में कोड करके बर्न किया जाता है। उसके आईसी में बर्न करना समझते हो, जैसे सीडी बर्न होती है। यहाँ पे कितने इंस्टॉल करना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कितने लोग हो जो सीडी सीडी यूज किए हो? यस सर। तो सीडी, sir. अगर सीडी बर्निंग का कॉन्सेप्ट जानते हो तो वैसे ही आईसी भी बर्न होती है। आईसी में कोड बर्न किया जाता है जो सी सी प्लस प्लस वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है ऑल्सो कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, वो तो अपना अपना एडवांटेज है, ठीक है। अब मैंने बोला था, याद करो, कि तुम्हारा जो आर्डिनो है वो जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम हो सकता है, वो पाइथन में प्रोग्राम हो सकता है, और वो सी प्लस प्लस और सी में भी प्रोग्राम हो सकता है। तो देख रहे हो कितना एक्सटेंसिव होता है एक बेसिकली एक सी प्लस प्लस यानी एक आर्डिनो को प्रोग्राम करना, यानी कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने मेंशन किया था, एक माइक्रो कंट्रोलर सस्ता होता है तो आर्डिनो भी सस्ता है बेसिकली, इसीलिए द स्टेटमेंट इट इज इनएक्सपेंसिव एंड ऑपरेट्स ऑन एनी ओएस, ठीक है। तुम इसको लिनक्स बेस्ड लैपटॉप में लेके चला सकते हो, तुम इसको मैक ओएस वालों को थोड़ा इश्यू जाता है, क्योंकि जानते हो सब लोग भाई, ओएस मैक है ही वैसा बेकार है, ठीक है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता किसी को मैक, बट हाँ जो अमीर है भाई वो अमीर है, ठीक है। मैक इज मैक, ठीक है। बट ऑब्वियसली आई मीन, ठीक है ना, मैं कमेंट नहीं करूंगा उस चीज पे, ठीक है। अब जो तुम्हारा आर्डिनो होता है, आर्डिनो उनो इज द मोस्ट बेसिक थिंग। मेरे को अगर 1 मिनट दोगे, मैं एक कुछ सामान लेके आता हूँ, हार्डवेयर स्टफ एक बार लेके आने दो मेरे को। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप द वीडियो एंड कम इन अ सेकेंड। बोर्ड कहाँ गया? तो 1 मिनट तो लगेगा, तो भेज दिया। मैं वापस से विजिबल हूँ ना? विजिबल हूँ मैं? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये वाला दिख रहा है? एक सेकेंड, आई गेस अब दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? यस Yes, sir. हाँ, ये वाला जो है ये ESP8266 बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा लेमैन टर्म्स में या फिर ऐसे आसान शब्दों में बोलूं, ये भी एक आर्डिनो बोर्ड ही है, बट ये वाईफाई मॉड्यूल पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक आर्डिनो उनो में इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल नहीं होता, ठीक है। बट ये वाला जो आर्डिनो बोर्ड होता है, ESP8266 बोल सकती हो या ESP32, ठीक है। ये ESP32 भी इसके टाइप सिमिलर दिखता है, बट उसका एक अलग एडवांटेज होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें वाईफाई मॉड्यूल के तुम यानी इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, बट यू कांट कनेक्ट आर्डिनो उनो टू लाइक वाईफाई और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस। अब मैं बता दूं कि ESP32 का एडवांटेज क्या होता है। कितने लोग BLE टेक्नोलॉजी के बारे में सुने? BLE का फुल फॉर्म पता है? Yes, sir. सुना है. BLE होता क्या है? गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना भाई, ईमानदारी से दो भाई, गूगल नहीं करने। BLE का फुल फॉर्म बता। नो, डोंट नो। अबे तुक्का मार सकते हो, डोंट नो क्या होता है? चलो छोड़ो, मैं भी क्या ही एक्सपेक्ट Bluetooth कर। device. हाँ, ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ लो एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। BLE का फुल फॉर्म होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, ठीक है।
अब उसका एडवांटेज क्या होता है, एक ब्लूटूथ होता है, देखो ब्लूटूथ इज वन टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ लो एनर्जी इज अनदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ब्लूटूथ, जनरल ब्लूटूथ बहुत, यानी अगर ये तुम्हारी 10% बैटरी खाता है या 5% या 4% बैटरी खाएगा, तो बेसिकली दोनों है सेम चीज, बट वो लो एनर्जी कंजम्पशन के लिए बनी है और ये थोड़ी सी हाई एनर्जी कंजम्पशन, बट समझ ना, दोनों यानी एक ही चीज के एक सस्ता वर्जन है और एक महंगा वर्जन है। एक बोलता है कि भाई मेरे को ज्यादा एनर्जी दो, एक बोलता है भाई मैं कम एनर्जी में काम कर दूंगा। तो दैट इज व्हाट ESP32 इज। तो ESP32 का एडवांटेज क्या होता है कि वो तुमको वाईफाई सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही करता है, बट वो उसके साथ साथ इन एडिशन में ब्लूटूथ लो एनर्जी वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है, ये तुम लोग एक चीज बताओ, ये माइक्रो कंट्रोलर है। मैंने क्या बोला था, माइक्रो कंट्रोलर क्या नहीं कर सकता, माइक्रो कंट्रोलर की स्टोरेज कितनी होती है, मैंने क्या बोला था? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? ओके, 2 KB, हाँ KB इसमें, गुड, ठीक है। तुम लोग मानोगे नहीं इसकी कैपेसिटी जो है, अरे यार ये ना फिल्टर के कारण पूरा वो हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो है दिख रहा है, ये वाला जो है इसकी कैपेसिटी 4 MB है, ठीक है। इसमें जो ये वाला ऊपर में जो चिप दिख रहा है तुम लोग, स्टील वाला दिख रहा होगा बॉडी, इसकी कैपेसिटी 4 MB है। एंड लेट मी टेल यू, तुम इसमें पूरी की पूरी एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैंने इसमें एक वेबसाइट होस्ट की हुई है पहले, ठीक है। तो सोचो हाउ कैपेबल इज दिस स्मॉल थिंग, एक माइक्रो कंट्रोलर से तुम क्या नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। एक और तरीके का माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको बोलते हैं लोरा मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पावर ये होती है कि दे कम्युनिकेट नॉट ओनली ऑन वाईफाई टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, बट दे ऑल्सो कम्युनिकेट ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी। और जहां पे बात आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, वाईफाई एंड ब्लूटूथ को कई गुना क्रॉस करता है, एंड नॉट इन लाइक एनी सेंस। उसकी मैक्स टू मैक्स रेंज, अगर लोरा मॉड्यूल का जो हाईएस्ट सबसे एक्सपेंसिव मॉडल है उसकी बात करूं, इट्स रेंज कैन गो टू 20 किलोमीटर्स। और इस पे एक यूट्यूब वीडियो भी आई है, मैंने बहुत 1 साल पहले अराउंड देखा था कि अ गाय इन इंडिया हिमसेल्फ डिड दिस एक्सपेरिमेंट, कि वो अपने घर के छत पे जो एंटीना होता है ना, उस पे वो उसको बांध के गया था और उसको एक्टिव करके एक सिग्नल भेजा था। उसको लिटरली 20 किलोमीटर दूर तक उसका सिग्नल आया था। तो समझ रहा हाउ पावरफुल इज IoT। लाइक तुम रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू खाली 20 किलोमीटर तक कम्युनिकेट कर सकते हो। और लोरा मॉड्यूल का प्राइस रेंज अराउंड 3,000 रुपए का होता है बस। अब तुम समझ लो, तुम रेडियो फ्रिक्वेंसी से कम्युनिकेट कर रहे हो। ऑल्सो मैं कुछ चीजें एप्लीकेशंस बताता हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी के, बट जो मैं बता रहा हूँ इट्स काइंड ऑफ इलीगल, सो ट्राई मत करना इसको। रेडियो फ्रिक्वेंसी तुम्हारे कार्स वगैरह में भी यूज होता है। तो बेसिकली आई हैड दिस प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं शेयर करूंगा बाद में, जो मैंने बनाया था। लाइक मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन किया था कि वो कौन सा वाला होगा, तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो आर्डिनो के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, ऊपर ऊपर है क्या आर्डिनो? एक बार यस यस सर। आ गया ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया नो लिख दो, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके जल्दी से आसानी से कवर अप कर दूंगा। ओके फाइन देन। अभी बताओ ना क्या बताना है, आई मीन थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। आते हैं उस पे, आएंगे ठीक है। वो थोड़ा सा सीक्रेट है, उस पे आएंगे अपन, बाद में आएंगे। ओके देन, मूविंग ऑन टू रास्पबेरी पाई, ठीक है। अब रास्पबेरी पाई की ये GIF मूव कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोसेस है। अच्छा, ये GIF मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, वो जब ऊपर जाता है तो ब्लैक कलर की चिप दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। तो वो ब्लैक कलर की चिप एक्चुअली ये वाला जो ओरिजिनल मॉडल दिखाया था मैंने रास्पबेरी पाई का, वो वहीं पे होता है।
और वो तुम्हारा बेसिकली ARM कॉर्टेक्स बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। वो उसकी बेसिकली मेन प्रोसेसिंग चिप होती है पूरे प्रोसेसर की, ठीक है। तो दैट इज द कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो रास्पबेरी पाई जो होता है इट्स लाइक मोर लाइक अ कंप्यूटर। आई मीन मैं वाईफाई स्विच करके ऑन वगैरह करके दिखा नहीं सकता तुम लोगों को एक रास्पबेरी पाई दिखता कैसे है, बट क्योंकि नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट ट्राई टू रिलेट की बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर इज मोर लाइक अ कंप्यूटर। मैं तुम लोगों को एग्जांपल वाले सेक्शन में उसका अच्छे से दिखा पाऊंगा, स्क्रीन शेयर वगैरह, वहां पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो रैम कैपेसिटी होती है वो 2 GB से 8 GB के बीच में वैरी करती है, ठीक है। एक रास्पबेरी पाई के बारे में बात करें पर्टिकुलरली तो, ठीक है। ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर इज फार मोर बियॉन्ड, ठीक है। तुम्हारी जो कैपेसिटी होती है माइक्रो कंट्रोलर से होती है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उसकी मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होती है। ऑल्सो एक माइक्रो प्रोसेसर की डिसएडवांटेज ये होती है कि वो एक प्रोसेसर है, तो वो एनालॉग वैल्यू कंप्यूट ही नहीं करेगा, वो कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रीड नहीं करता, वो हमेशा डिजिटल वैल्यूज रीड करता है। तो उसको जो भी चाहिए डिजिटल चाहिए, वो डिजिटल के अलावा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर तुमको उसको एनालॉग डेटा देना है तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तुम लोग अपने 11th या 12th क्लास में, जिसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वो वहां पे इंप्लीमेंट होता है जाके। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इतना ये होप क्लियर हो गया होगा। और ऑल्सो तुम्हारा जो रास्पबेरी पाई है, ऑल्सो जो तुम्हारा रास्पबेरी पाई है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं डेबियन ओएस। जैसे तुम्हारे विंडोज लैपटॉप में विंडोज या लिनक्स यूज होता है, वैसी रास्पबेरी पाई के लिए डेबियन ओएस बना हुआ है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर तुम चाहो तो रास्पबेरी पाई पे विंडोज ओएस चला सकते हो, ठीक है। लिनक्स बहुत लोगों को मैंने चलाते देखा रास्पबेरी पाई पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज नहीं चला सकते हो रास्पबेरी पाई पे। बट ऑल्सो वन थिंग कि रास्पबेरी पाई की एक लिमिट है कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एसडी कार्ड है, जिसपे यानी बोलते हो ना कि तुम्हारा लैपटॉप के इस हार्ड डिस्क पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, वैसे जो एसडी कार्ड पे जो लोड होता है उसकी साइज 32 GB को एक्सीड नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती उसका अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में यही दे सकता हूं कि इट्स जस्ट दैट दे आर लिमिटेड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ देयर टाइम। सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इट्स लाइक उनका जो हार्डवेयर, जो रास्पबेरी पाई के डिजाइनर्स हैं, उन्होंने डिजाइन ही ऐसे किया है कि भाई 32 GB से ज्यादा की अभी मेमोरी कार्ड लग ही नहीं सकती। हाँ, डेबियन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिनक्स बट नॉट लिनक्स एग्जैक्टली। डेबियन एक तरीके से चचेरा भाई है लिनक्स का, पर डायरेक्ट भाई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, श्रेयांश इज सेइंग दैट लिनक्स इज नहीं भाई, डेबियन इज लिनक्स डिराइव्ड, लिनक्स इज नॉट डेबियन डिराइव्ड, डेबियन इज लिनक्स डिराइव्ड, उल्टा बोल रहा है। तो वो चीज है, ठीक है। मैंने रैम के बारे में डिस्कस किया था। रास्पबेरी देखो, जैसे आर्डिनो या फिर इस पे होता क्या है कि तुम एक टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ दिक्कत ये होती है कि या तो तुम सिर्फ सेंड करने का काम कर सकते हो या सिर्फ रिसीव करने का काम कर सकते हो। बट रास्पबेरी पाई के साथ इसी चीज पे एडवांटेज होता है कि तुम सेम डिवाइस पे रिसीव भी कर रहे हो, सेम डिवाइस पे सेंड भी कर रहे हो। ऑल्सो रास्पबेरी पाई पे तुमको कोई अलग से मॉड्यूल वगैरह नहीं लगता कि भाई रास्पबेरी पाई का एक वायरलेस वाला मॉड्यूल अलग है। रास्पबेरी पाई खुद वाईफाई पे ऑपरेट करता है। अगर तुम उस पे वाईफाई हटा दोगे तो तुम रास्पबेरी पाई से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। तो रास्पबेरी पाई के पास खुद का एक इनबिल्ट वाईफाई फीचर होता है, एक खुद का अटैच ब्लूटूथ फीचर होता है। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा मेजर फीचर हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो एज सुन एज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर गोज, हाँ ये चीज एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ये बताओ तुम्हारे कंप्यूटर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अगर तुम गेम खेलते हो तो? जस्ट टेल मी। अगर तुम्हारे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हीटिंग। अगर तुम GTA 5 एक i3 प्रोसेसर में चला दो, तुम्हारा लैपटॉप फट के चिथड़े उड़ेंगे। FPS ड्रॉप तो है ही भाई। FPS ड्रॉप आता क्यों है? हीटिंग,
हीटिंग के कारण आता है भाई। अगर मैं बोलूंगा भाई, अच्छा कभी तुम लोगों ने देखा है एक बॉडी बिल्डर जब एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी हीट होती है, अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा ना उसको हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसीलिए उन लोग थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखते हैं। उनका फूड इनटेक होता है ना, भले वो जितना हीट लेते हैं वो लोग उतना घास फूस भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि घास फूस उनकी बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। तो वैसे ही रास्पबेरी पाई का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ एक हीटिंग इशू आती है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो दैट इज अ मेजर इशू विथ इट। तो आई गेट अभी तक से रास्पबेरी पाई आर्डिनो वगैरह से तुम लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो एक चलो एक क्विज खेलते हैं छोटा सा, ठीक है। क्विज ये खेलते हैं कि आई वुड बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस ऑन रास्पबेरी पाई एंड आर्डिनो, यू गाइस हैव टू आंसर, ठीक है। रुको थोड़ा सा सोच लेने दो मेरे को भी एक बार, क्या पूछा जाए तुम लोगों से। अच्छा इतना ही बता दो, क्या एक आर्डिनो एक रास्पबेरी पाई से कम्युनिकेट कर सकता है? यस और नो? ओके यस। वायरलेसली या वायर्ड वे में बोल रहे हो? आर्डिनो में वाईफाई लगा हो तो ओके, वायरलेसली श्योर हो सब वायरलेस है? और वायर्ड वाले श्योर हो वायर्ड ही होगा? सब क्या सब गलत? आर्डिनो और रास्पबेरी पाई चाहे तो दोनों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायरलेसली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, दोनों बोथ एग्जैक्टली। अभिनेश एंड विपुल, यू गाइस आर राइट, दोनों तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग ट्रू। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, एक सेकेंड। हाँ, डेटाबेस में अब डेटाबेस की जरूरत क्यों होती है? ये क्वेश्चन मान के चलो कि डेटाबेस की जरूरत क्यों है, पहले तो चैट में इसका आंसर लिखो। डेटाबेस की जरूरत क्यों है हमको वाईफाई यानी कम्युनिकेशन में? टू स्टोर हैवी डेटा, स्टोर डेटा फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन देखो इट्स लाइक अगर तुम अपने कॉलेज को लेटर लिखते हो, डीन को लेटर लिखते हो, ठीक है, कि भाई तुम्हारा कॉलेज खोलना है करके, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग एक वो लिखोगे, एक चिट्ठी लिखोगे, चिट्ठी को जाके कहाँ पे इंडिया पोस्ट ऑफिस में सबमिट करोगे। तो वो इंडिया पोस्ट ऑफिस क्या है, तुम्हारे एक तरीके से रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है कि भाई ये बंदे ने एनआईटी रायपुर के डीन को एक लेटर लिखा है कि भाई कॉलेज खोलने के नाम से, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा चिट्ठी है वो मैसेज हो गया, और बेसिकली जो तुम्हारा डाक वाला है वो एक कैरियर है कि वो तुम्हारे इंफॉर्मेशन को डायरेक्टर या डीन तक कन्वे कर रहा है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ मीडियम, डेटा बेस इज लाइक अ स्टोरेज पॉइंट जहां पे दोनों अपना बेसिकली मैसेज रखते हैं कि ताकि दूसरा बंदा उस मैसेज को फेच कर सके या रिसीव कर सके। डेटाबेस इज लाइक अ स्टोरेज पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक सो दिस इज क्लियर। तो डेटाबेस की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, डेटाबेस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो बहुत सारे डेटाबेसेस आज के डेट में अवेलेबल हैं जो आईओटी और लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलरली बने हैं, स्पेशली एट द बिगिनर लेवल्स। मेनली 3 ऑफ देम आर यूडीबॉट्स, फायरबेस एंड सुपरबेस, ठीक है। तो होता क्या है इनमें, you can like directly have some of the like configuration settings and all, जिसके थ्रू तुम डायरेक्ट वहां पे डेटा सेंड कर सकते हो। एंड वंस यू सेंड द डेटा ओवर देयर, वहां से तुम आराम से सीधे डायरेक्ट अपने रिसीविंग एंड पे या वापस सेंडिंग एंड पे उसको रिसीव कर सकते हो डेटा ऑर्गेनाइज वे में। एग्जैक्टली तुम ये ने थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में बोलूं कि लेट से एक रिकॉर्ड, एक लेजर मेंटेन, लेजर समझते हो ना, एक खाता टाइप का मेंटेन कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को 10 बजे ये डेटा आया था,
12 बजे उसके बाद ये वाला डेटा आया, 1 बजे ये डेटा आया, 2 बजे ये डेटा आया, 3 बजे ये डेटा आया, तो तुम्हारे पास एक तरीके से रिकॉर्ड भी मेंटेन्ड है दोनों तरफ से। इट्स लाइक अ एंट्रेंस पॉइंट कि कॉलेज में कौन घुस रहा है, कॉलेज से कौन कितना बजे बाहर निकल रहा है, तो उस तरीके से ये एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। हाँ, दे आर ऑल फ्री टू यूज, सुपरबेस इज फ्री टू यूज, फायरबेस इज फ्री टू यूज, यूडीबॉट से यानी उसका लिमिट है, यानी 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है कुछ, एंड उसके बाद फिर कुछ पे करना पड़ता है, तो वही है, यानी ऑब्वियसली एक महीने का फ्री है, तो वी आर आल्सो कंसीडरिंग इट फ्री। बाकी तो आई मीन ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड कि क्या जुगाड़ में लगा सकते हो तुम, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तो दैट्स अपॉन यू कंप्लीटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक से आई होप डेटाबेस तक सबको समझ आ गया हो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इस पे मैं ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करूंगा क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ। जो लोग CSIT वाले पर्टिकुलरली लोग हैं उनको इसके बारे में काफी आसानी से नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि ये उनका एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स करके, ठीक है। तो बेसिकली जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो देखे होगे http www डॉट कुछ करके होता है, ठीक है। तो HTTP इज दैट प्रोटोकॉल जिसके थ्रू तुम कम्युनिकेट करते हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हाँ, मैंने कहाँ पे एंड किया था, तो बेसिकली वही होता है कि दीज प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली वो तरीके होते हैं जिससे तुम्हारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लेट से तुम हमारे वेबसाइट पे जाते हो https://checktheL.co, तो बेसिकली इट्स अ वे कि तुम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो हमारे सर्वर पे कि भाई तुमको हमारे वेबसाइट का जो भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, वहां से पूरा डेटा चाहिए, और वो भी एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरीके से यानी बेसिकली इट्स लाइक अ वे ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम लाइक सर्वर एंड ऑल। तो मैं इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट अगर तुम लोगों को इसके बारे में जानना है देन यू कैन गूगल इट ऑन लाइक, गूगल कर सकते हो, थोड़ा पढ़ सकते हो विकिपीडिया वगैरह सब जगह से, ठीक है। नहीं तो अगर इस पे मैं स्पेसिफिकली गया तो इस पे 2 घंटे की एक अलग वर्कशॉप की हो जाएगी पूरी की पूरी, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू डेप्थ ऑफ दिस, चलेगा ना? इज इट ओके फॉर एवरीवन? बोल दो भाई कुछ। ओके, अब आते हैं कहां से तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, ये कहां कहां से खरीद सकते हो। तो अगर दोज हु ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ NIT रायपुर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर देम। Mahalakshmi Electronics is one of the sponsors of our event, and they are willing to give 10% discount on all the products like जो भी during like after the event अगर किसी को IoT based सामान लेना हो, they can go to that particular shop. It's located in शादा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। So अगर किसी को ऑर्डर करना हो ऑनलाइन तो वो शिप नहीं करते, बट जब तुम कॉलेज आते हो देन यू कैन बाय इट। ज्यादा दूर नहीं है, अराउंड यही कोई 5 किलोमीटर दूर है, तो बाय बाइक और एनी अदर ऑटो मीडियम यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर शॉप। अगर जो लोगों को ऑनलाइन अभी सीखने के लिए जाना है देन दे कैन बाय फ्रॉम Amazon और थिंगबिट्स से सिर्फ रास्पबेरी पाई का सामान ऑर्डर करना, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, थिंगबिट्स से बेस्ट कोई नहीं बेचेगा तुमको रास्पबेरी पाई का सामान, पर्टिकुलरली इन इंडिया, बिकॉज थिंगबिट्स आर डायरेक्ट डीलर्स ऑफ रास्पबेरी पाई, ठीक है। यानी रास्पबेरी पाई का जो भी पूरा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है वो थिंगबिट्स इंडिया में शिप करने का काम करती है, या बेसिकली सेल करने का काम करती है। तो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर बाइंग समथिंग रिलेटेड टू रास्पबेरी पाई, you can go for ThinkBits, but also if you are willing to buy it like an offline basis, तो महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स भी जा सकते हो। क्योंकि देखो, हार्डवेयर इज समथिंग जहां पे होता ये चीज है कि कभी कभी जो चीज दिखती है वो चीज तुमको मिलती नहीं है। इसको ऐसे समझा सकता हूं कि Amazon से अगर तुम लोग कोई मोबाइल फोन मंगाते हो, तुमको एक मन में डर रहता है, वो 1 सेकेंड के लिए 1% डर रहता है कि भाई मोबाइल के डब्बे से साबुन का वो ना निकल जाए, ठीक है, साबुन ना निकल जाए। डर लगता है या नहीं? टू बी ऑनेस्ट बताओ।
तो वही चीज है भाई, हार्डवेयर में ये चीज बहुत ज्यादा डर लगता है, समझ रहे हो। एक रास्पबेरी पाई अराउंड अराउंड 8 GB का थिंक बिट से सोचो 6,000 रुपए का पड़ता है, तो इस चीज का हल्का सा डर रहता है। बट इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, इट्स वर्थ इट। अगर अगर तुम डर रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो भाई ठीक है, ऑर्डर करो तब तो बिल्कुल। भाई वो रिस्की होता है भाई मामला, ठीक है ना। तो आई मीन आई एम नॉट गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। तो बाकी Amazon या थिंकबिट से तो तुम लोग ऑर्डर कर ही सकते हो। ओके, अब आइए अपने शोकेस करने की प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो अब आते हैं अपन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, ठीक है। तो एक सेकंड मेरे को मेरा गिटहब खोल लेने दो। ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि मैंने कोड उत्सव जीता था अभी अभी रिसेंटली? कितनों को मालूम है यहाँ पे, लाइक आई एम विनर ऑफ द कोड उत्सव? ओके, पता है हम लोग बनाए क्या थे एग्जैक्टली exactly? किसी को आइडिया है कुछ? हाँ, वॉच बनाया था एग्जैक्टली exactly. चलो पहले उसी को दिखाते हैं फिर, ठीक है। कोड उत्सव का IoT सेक्शन में चले जाते, एक सेकंड। जो यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ मैं, की फोल्डर में सो बेसिकली ये हम लोगों का जो बैंड का मॉडल था वो कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा था, ठीक है। सो दिस वाज लाइक अ प्रोटोटाइप, थोड़ा थोड़ा MI बैंड टाइप दिखता है, बट आई गेट इट। थोड़ा सा मेहनत किया है भाई, बट ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही सिमिलर हो गया, उसके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो हम लोगों का जो बैंड है वो ऐसे टाइप का कुछ दिखता है। एंड लेट मी शो यू द लाइक हम लोग कर क्या रहे हैं उसमें। थोड़ा सा आइडिएशन वाली चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारा वो जो घड़ी है ना उसको मैंने अभी के लिए, यानी अभी हम लोगों के पास घड़ी फिजिकल में डिजाइन नहीं है ना, तो ये एक्चुअल में मेरा ये कोड उत्सव का प्रोजेक्ट अभी भी ये जिंदा ही है, ठीक है। अगर मैं इसको लगाऊंगा ना तो ये एक्चुअली में ऑपरेट भी करेगा मेरे को, आई गेस। हाँ, ये मेरा यही है कोड उत्सव का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो आर्डिनो बोर्ड है इसमें तुम लोगों को यहाँ पे ये एक सेंसर दिख रहा होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। तो इससे एक्सेलेरोमीटर इज लाइक अ कैसे समझाऊं, गायरोस्कोप समझते हो? गायरोस्कोप क्या होता है? जितने लोग डोरेमोन देखे उतने लोग गायरोस्कोप जानते होंगे क्या होता है। गायरोस्कोप हो जानते हो ना, बेसिकली एक्स वाई जेड प्लेन का तुमको उससे वो पता चलता है कि भाई मैं एक्स जेड प्लेन में हूँ, वाई जेड प्लेन में हूँ, ठीक है। यानी ऐसे टिल्टेड हूँ एक्स वाई जेड प्लेन में, कोई रैंडम उसमें, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरोमीटर वही चीज करता है, वो तुमको तुम्हारा प्लेन बताता है कि भाई तुम किस करेंटली किस प्लेन में हो, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। ये जो तुम लोगों को रेड वाला सेंसर दिख रहा है, दिस इज द ECG सेंसर। तो ईसीजी जानते हो क्या होता है? ECG का फुल फॉर्म लिख दो, चलो मान जाऊंगा मैं बिना गूगल किए। भाई 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 एनसेफेल भाई, यानी क्या ही। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हार्ट की जो एक्टिविटी है रही थी, या जो भी यानी पल्स एक्टिविटी थी, उसको एनालाइज कर रहे थे, ये डिटेक्ट करने के लिए कि तुमको स्ट्रेस या डिप्रेशन थोड़ी न करके। ये दोनों डेटा का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे थे। अब क्या हो रहा था, हम लोग आर्डिनो के थ्रू इस डेटा को फायरबेस डेटाबेस पे भेज रहे थे, एंड देन ये डेटा जो था हमारा फायरबेस डेटाबेस से पिकअप हो रहा था, एंड देन एक ऐप या उस पर डिस्प्ले हो रहा था। मैं तुम लोगों को यूट्यूब वीडियो थोड़ा सा वो करके प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। मेरे चैनल पे होना तो चाहिए आई गेस, नॉट श्योर कि मेरे चैनल पे है या नहीं, जस्ट अ सेकेंड। आवाज आ रही है ना वीडियो की? एक सेकेंड।
यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा। आवाज आ रही है वीडियो की? कोई कंफर्म कर दो एक बार। No, sir. आ रही है ना? No, no. No, sir. अच्छा नहीं आ रही, ओके। अब आई होगी आई गेस, एक सेकेंड। This opportunity. So let me show you the IoT setup we have over here for this particular project. We have this particular Yes, sir. ECG sensor, the red one over here, which is giving the ECG data of the person wearing the band. We have the accelerometer sensor, which gives the XYZ plane in which the person is in right now. So the ECG sensor data we are sending is actually used for the detection of basically the person is depressed or not, while the data from the actual accelerometer is actually used for detecting the stress level of the person. That particular thing is called actography. So these are the things that we are doing with the IoT part. From here the data is being sent into the Arduino Fire, means the Firebase database through at the backend. Thank you. अब ऐप दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, ऐप का एक बार मेरे को मिल जाए। हाँ। अब देखो वहां पर से जो डेटा जा रहा था वो यहाँ पे engine wherein we show the एक depression. सेकेंड। This is the app interface. This is the app interface as we could see here. This is the analytics engine wherein we show the depression index as well as the stress index. We have daily, hourly, monthly data available with us. This is the chatbot section that we have included in our. तो समझ वहां से जो डेटा जा रहा था रियल टाइम में एक्चुअल में हो क्या रहा था, ठीक है। मेरे हार्डवेयर से डेटा निकला, डेटाबेस में गया, डेटाबेस से किसने फेच किया? बैकएंड ने, जो वेबसाइट या ऐप का बैकएंड है उसने फेच किया। बैकएंड में वो प्रोसेस हुआ एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने उसको प्रोसेस किया एंड बताया कि बंदा स्ट्रेस्ड है या डिप्रेस्ड है या नहीं। कैसे पता चला? हमने उसके लिए एक इंडेक्स बनाया जिसको हम लोग बोले डिप्रेशन इंडेक्स या फिर स्ट्रेस इंडेक्स। स्ट्रेस इंडेक्स अगर बोलता है 1 है यानी बंदा स्ट्रेस्ड है, अगर 0 दिखाता है तो वो स्ट्रेस नहीं है। वैसे डिप्रेशन इंडेक्स, अगर डिप्रेशन इंडेक्स हाई है तो बंदा हाईली डिप्रेस्ड है, अगर लो है तो बंदा डिप्रेस नहीं है। फिर तो इट्स इन दैट framework wherein when the our model. ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। अभी तक से ये वाला प्रोजेक्ट समझ में आया? ये Yes, नो, sir. हाँ अच्छा, नो साउंड वाला नो था ना, ठीक है। अब जाते हैं थोड़ा सा दूसरा वाले पे। कौन सा वाला करें? It's a little time issues. So, can choose. ये वाला करते हैं, छोटा है वीडियो इसका इसलिए यही वाला। My name is Alan Sarkar and I'm representing my team, Evolution. So, me along with my teammates, Sanjeev Nath and Avan Devangan have come up with this wonderful product called MedIoT under the track Social Good and Open Innovation. You might wonder, what is MedIoT? Well, MedIoT is this product that अगर MedIoT के बारे में जानना है थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। MedIoT was my research internship, like my project research internship that I did at NIT Andhra Pradesh, and this is one of my best projects on my profile. And personally, this was the key factor because of which I got placed in G Healthcare. I mean, this is the key project for which everyone I got appreciation from almost everyone whosoever saw this project. So मैं suggest करूँगा कि ये वाला तुम लोग पूरा देखो। combines healthcare services with technology. What we would like to achieve with MedIoT is that patients can avail basic healthcare services at the ease and comfort of their houses, offices, etc. So these means that patients who no longer have to be available physically
at the doctor's clinic, chambers, dispensaries, hospitals, etc., in order to get themselves checked against their diseases or ailments. All they would need is a phone or a laptop with access to a web portal and a special medical toolkit. Our special medical toolkit is an IoT device with various medical equipments that So हाँ, अब यहाँ पे मैं एक्चुअली दिखा सकता हूँ. तो ये जो दिख रहा है ये तुम लोगों को जिसके ऊपर हीट सिंक लगा है, हीट सिंक जानते हो ना क्या है? Yes, sir. ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जिसके ऊपर ये बड़ा वाला हीट सिंक लगा है, उसके नीचे वो जो दिख रही है पतली सी एक स्टील लेयर है, वो तुम्हारा प्रोसेसर है. मेन जो बोल सकते हो, जैसे तुम्हारा i3 i5 होता है ना तुम्हारे कंप्यूटर में, वो रास्पबेरी पाई का वो मेन प्रोसेसर है. ठीक है, ARM कॉर्टेक्स बेस्ड रिस्क प्रोसेसर जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये वो चीज है. ठीक है, और बाकी ये कोई खास नहीं है. ऑल्सो यहाँ पे अगर मेरे को थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए क्लियर नहीं है इमेज में, नहीं तो मैं करता जरूर, बट दिख नहीं रहा है कुछ क्लियर इसमें. और ये पूरा वो कैड मॉडल है कि कैसे अपन लोग फिट. तो मैंने सोचा था कि मैं प्रोजेक्ट आइडिया था कि यहाँ पे अपना वो लैपटॉप टाइप का स्क्रीन रहेगा, यहाँ पे कीबोर्ड लगेगा और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स, बायो सेंसर्स होंगे जिसके थ्रू हम उस बंदे का टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, दिक्कत ये होता है जनरली रिमोट एरिया जैसे हिमालय वगैरह में हो गया. ठीक है, तो वहां पे हर बार हेलीकॉप्टर के थ्रू ऐसे डॉक्टर्स वगैरह को भेजना पड़ता है. ठीक है, तो दिस ऑल्टरनेटिव द प्रोडक्ट विच या प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया, इसका एडवांटेज ये था कि एक बार तुम इस जो भी किट है इसमें तुम डेटा रिकॉर्ड करके रख लिए, तो वो तब तक रिकॉर्डेड रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू रीच अ नेटवर्क एरिया और वो वहां से कनेक्ट होके डेटा चढ़ा ना दे. और जैसे डेटा चढ़ा देगा वो अपना सारा जो स्टोर डेटा था उसको क्लियर करके रीसेट कर लेगा आराम से. तो इन दिस वे एक तरीके से ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था मेरा इसको लेके. Medical toolkit is an IoT device with various medical equipments that would help the doctor access the patient well. This medical toolkit is specially customized, keeping in mind of the patient's current needs, ailments, diseases, in order to say previous medical histories. This comes in wake of the ongoing pandemic situation when most patients are scared to visit their doctors physically because they might get infected at the clinic. This would also help many patients out there who live in remote areas that are unable to visit their doctors in person. MedIoT is designed to cater all such patients who want to get themselves checked remotely. Now, I would like my colleague Aman Devangan to tell us more about MedIoT. So now we थोड़ा सा स्किप करते हैं. तो देखो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी अभी भी? Yes, sir. So this is how actually Raspberry Pi operating system looks. ये होता है एक Raspberry Pi operating system. जानता हूँ थोड़ा थोड़ा विंडोज वाली फील देता है, but this is how actually a Debian OS looks like. तुम लोगों को लगता होगा ना कि आज तक की Raspberry Pi को एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कोड वगैरह लिख के रिमोटली. ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उसका भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बस उसको लाना आना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली बहुत प्यारा इंटरफेस होता है, सच बता रहा हूँ. Now we are on the Raspberry Pi. The sensors have been connected. If you want to see how connections have been done on our Raspberry Pi, you can check out the GitHub link that has been attached to the dev folio. Check out the GitHub repository link and see the connections. So now, as our connections are ready, we will directly jump onto the Raspberry Pi terminal and execute our code. देखो अब वो डेटा भेजना उसने शुरू कर दिया. The data is being pushed to two of the databases. Actually, for our project, we have only 3 sensors attached. One is the pulse oximeter, another is the pressure measuring device, and third one is our temperature measurement. As because the biosensors come really expensive in the market, therefore we have to go for some of the cheap alternatives that are available with us in the lockdown. That's why. Otherwise, it's everything fine. You just have to replace them with the sensors, expensive ones or the biosensors that are available in the market, and that's done.
So as you can see, the database is being pushed, the data is being pushed into the database, and now let's check what is it really happening or not. So let's check the UDBots devices. So as you can see, our location is already fixed over here. We have our API labels and all. Now let's check it by refreshing it once. Is it pushing data or not? So yeah, in a few seconds, the data is being transmitted, and if we check it in detail, yeah, the data is being transmitted, and we have our graphs also over here, what kind of data, at which time it has been pushed, everything. And so this is the hardware part of the project. Now we will switch to the software side, that is our PHP based website. Thank you. Hello everyone, this is the website of MedIT. अभी तक से समझ में आ गया ना कि बेसिक ऑपरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी को कोई डाउट अब तक? नो सर, नहीं है, ओके। यस क्लियर है। तो थोड़ा सा अब अपन स्किप करते हैं, ठीक है। लॉगिन हुआ यहाँ पे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके दिख रहा है तुम लोगों को, एक टैब है वहां पे। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग वाला अगर देखोगे तो real time monitoring. Here what we'll do is यहाँ पे जैसे ही वो देखना चेक वाइटल्स दबाएगा, तो जो मैंने डेटाबेस में पुश किया था ना, वो डेटा यहाँ पे डायरेक्टली फेच हो जाएगा, बट डायनेमिकली चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये PHP, और तुम लोग जानते हो कि PHP से सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बनती है, नॉट डायनेमिक वेबसाइट्स। IoT circuit, and we'll show the details to the user here. So if I click on check my vitals here right now, so see right now my blood oxygen level is 96.36, my blood pressure is 98 atmospheres, and my temperature is 31.4 degrees Celsius. So once I click on save, so it shows that my data was successfully saved. So if I go to my data, here you go, my data was successfully saved, and this data can be used by the doctor to analyze the patient history as well. So this is the basic website that we have built. आई होप अभी तक से ये वाला प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ओवरऑल है क्या। अगर किसी को कोई डाउट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो। ओके ठीक है ना। तो ओके, एक प्रोजेक्ट और दिखा देता हूं मैं, जो मैंने वादा किया था, जैसा कि but don't try that at home. That's a warning from my side for sure. Jammer. What I did is 2 years ago, like जब मैंने शुरू में IoT बनाना शुरू किया था, ठीक है, I made this particular project, जिससे मैंने एक मारुति ऑल्टो की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे तुम्हारा कार लॉक या अनलॉक होता है, मैंने उस फ्रीक्वेंसी को नॉट ओनली सिर्फ कॉपी किया, बल्कि उस रेप्लिकेट करके सेम सिग्नल को मैंने यूज करके नॉट ओनली कार को वापस से खोला भी, बट मैंने उसका एक एंटी सिग्नल भी जनरेट किया, जिससे अगर तुम ओपन करने का सिग्नल लोगे तो वो एंटी सिग्नल उसको कैंसिल आउट करके कार को खुलने से रोक देगा। तो मैंने ये वाला एक प्रोजेक्ट बनाया था, एंड आई रियली लाइक दिस प्रोजेक्ट। आई मीन दिस वाज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट, आई रिमेम्बर। ठीक है, तो इसमें हो ये रहा था कि जो तुम्हारी कार की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 433 मेगाहर्ट्ज पे होती है। तो मैंने क्या किया, एक RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नाम के सेंसर्स आते हैं, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले रिसीवर से उसका जो सिग्नल था वो रिसीव कर लिया, एंड देन उसका मैंने कॉपी बेसिकली एक डेटा फॉर्मेट में सेव कर लिया, और उस सेव डेटा फॉर्मेट को वापस से मैंने फिर ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करवाया वापस से अनलॉक करने के लिए। बट इन एक्चुअल दिस इज इलीगल, so I would suggest not to actually practice this.
ठीक है, जब तक खुद की गाड़ी ना हो इसे प्रैक्टिस नहीं करना। 433 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमिशन इज बैंड इन इंडिया। आई एम अगेन वार्निंग, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, so this was also one of my projects, and I guess मेरे पास और भी projects हैं, but we are short on time, so yeah, let's finish up with the last slide कि कहाँ से तुम लोग Arduino या Raspberry Pi पढ़ सकते हो। So there's this guy called Paul McWhorter on YouTube। मैं उसका एक बार YouTube चैनल दिखा देता हूँ तुम लोगों को, Paul McWhorter का। He's a really great guy। इसने काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए हुए हैं पहले Raspberry Pi और उसके लिए, and really you don't need to purchase any course on Udemy or Coursera, but हाँ स्पेशलाइजेशन पढ़ना है पढ़ सकते हो, बट इसके कोर्सेज काफी लेजिट है। आई मीन दे आर रियली रियली लेजिट। ठीक है, तो आर्डिनो की इसके पास पूरी ट्यूटोरियल और रास्पबेरी पाई की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज है। ये पूरी 2 ट्यूटोरियल सीरीज है, एंड दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ आई नो। So I recommend going through this particular content stuff I am sharing, and yeah, that's it from my side. If anyone has any questions, feel free to ask them. Anyone has any doubt, you can write in chat or even unmute yourself. Yeah, obviously you can connect Arduino directly to PC with cable। अगर PC से कनेक्ट नहीं होगा तो प्रोग्राम कैसे अपलोड करोगे Arduino में? Any other doubts? Okay. Seems there is no other doubt. So we have shared a Google form link in the chat box. Please fill that so we can mail you your certificates before in few days. Okay. Yeah. Even now, if someone has any doubt, they can ask. No problem. Anyone, any doubts? If there are no doubts, then we can end this session probably. Also, those who all have like आज के session में जितने भी लोग आए, if they want the certificates, please fill the form. The form link has been shared in the chat. Please fill the form before leaving. सर ये देवो फिल क्या है मतलब? Devfolio। आईडी डेफोलियो, हाँ हाँ, तो बेसिकली डेवफोलियो एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारे डिटेल्स वगैरह हम लेते हैं, एंड अगर तुम कोई गिव अवे प्राइज वगैरह जीतते हो या फिर तुमको कोई कूपन वगैरह भेजना है, तो इट्स लाइक समझ रहे हो ना, तुम्हारे लिए एक फॉर्म की तरह है, वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह ही, ऐसा ही समझो। Yeah, and generally Devfolio there's a hackathons to organize करने के लिए use होता है। So also we have on 12th and 13th we have a hackathon coming. So अगर आप लोग के पास ideas हैं then please do participate. It should be beginner friendly. The theme is based on open innovation. So any idea you have you can apply. सर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में आर्डिनो और रास्पबेरी पाई होता है? नहीं 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 भाई, अगर कॉलेजेस के सिलेबस में अगर ये चीजें आने लग गई ना भाई, आई मीन दुनिया बदल जाएगी। Like you can't depend on college for like programming and these things. Exactly. Especially when it comes to hardware. सर पर इसमें फेल क्या करना है? हाँ, फॉर्म में बोल रहे हो? यस Let सर, me reshare मतलब the वो form. डेवोफिल जो भी है। तुम्हारा नाम, यानी ऑब्वियसली जो चीज लिखा है वही चीज तो भरना है, और क्या? और डेवोफिल आईडी जो है, डेफोलियो आईडी में क्या भरना, मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा तुमने डेफोलियो में डेफोलियो, मेरे पास कोई डेफोलियो आईडी नहीं है। अरे तो साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप होता है।
सर आईडी में डेफोलियो का लिंक डाल दें चलेगा ना? हाँ Yeah. So, yeah, very informative session today. Hope you all liked it. So we can stop recording. okay then.